And very good evening, everyone. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin Team, and I'm sure all of you must be doing really good. Today, we are doing this very important session on a very important topic, a topic which is close to almost all our hearts, and it is acne. And we know how difficult and at times depressing it is to go through that phase of acne vulgaris as a young adult, adolescent, etc. Now it's important to also understand that other than that, those who faces acne issues due to various reasons, how to deal with it, what to do, and most importantly, what not to do. Because कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, DIYs, होम रेमेडीज, बहुत कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कई बार हमारी स्किन के लिए ठीक नहीं होती और हमारे एक्ने की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या करना चाहिए अगर एक्ने इश्यूज है और क्या नहीं करना चाहिए। और यही समझने में आज हमारी मदद करने जा रही हैं फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट मथुरा से डॉक्टर शिवानी शर्मा आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। शी इज एन MBBS MD in dermatology and have more than 6 years of clinical expertise. She completed her MD in dermatology from PMCH from Patna, or currently she is serving as a specialist medical officer dermatology at District Hospital Mathura. तो डॉक्टर शिवानी शर्मा आज हमारे साथ है। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर शिवानी शर्मा। Thank you so much. So doctor, today we are going to talk about acne and acne management. अब हमें से ज्यादातर लोग जो है एक्ने के शिकार होते हैं, खास तौर पे एक्ने वल्गरीज व्हेन वी वर टीनेज और इन आवर यंग एडोलेसेंस, और उसके अलावा भी दूसरी वजहों से भी एक्ने इश्यूज कई लोगों को होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, एक्ने है क्या, क्यों होता है, कौन से अलग अलग टाइप्स एंड स्टेजेस हैं एक्ने के? So acne is basically a very common chronic condition जिसमें होता क्या है, हमारे पाइलोसेबेशियस यूनिट्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं ड्यू टू ऑयल, स्किन डेब्रिस एंड बैक्टीरिया। तो बेसिकली पाइलोसेबेशियस यूनिट्स क्लॉग होने की वजह से ही हम स्किन पे जो लीजन्स एक्ने के देखने को मिलते हैं, जो कि कॉमेडोन्स हो गए, या इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है बिकॉज देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड P. acnes which basically causes the inflammation. Then we get papules and pustules on the skin. And types की बात करें तो नॉन इन्फ्लेमेटरी जो लीजन्स होते हैं, जो माइल्ड एक्ने के केसेस में देखने को मिलते हैं, उसमें हमें मिलते हैं बेसिकली कॉमेडोन्स व्हिच कैन बी बोथ ओपन या क्लोज कॉमेडोन्स। एंड द सेम व्हेन दे गेट इन्फ्लेमेटरी तो वे हमें मिलते हैं papules, then later on they get converted into pustules. Also severe acne cases में we get nodules as well as cysts on the face. And nodules and cysts, they can be painful. Why? Because these lesions, they are deeper in the skin, and usually these are the lesions that heal with acne scarring. बिल्कुल, तो ये है एक्ने और एक्ने के वेरियस टाइप्स। नाउ डॉक्टर, व्हाट आर द वेरियस कॉजेस, क्यों एक्ने होता है? So basically there are a lot of factors that play a role, mainly hormonal fluctuations, stress. Some genetic factors also have a role to play, as we see that some patients, they do tell that their parents usually used to have acne. So genetics, then stress. In nowadays we see stressful lifestyle, and also a lot of hormonal changes. These are the big causes that cause acne. डॉक्टर, एक्ने जब भी होता है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कॉमन है और कई हम में से लोग हैं जो एक्ने इश्यूज से परेशान रहे हैं, बट आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग इस बात से इग्नोर नहीं करेंगे और इत्तेफाक रखेंगे कि हमने सबसे पहले कोई ना कोई होम रेमेडी ट्राई की होती है। आजकल तो इतने DIYs on various social media platforms, there are so many influencers and not all of them are both certified dermatologists like you. तो कई लोग सिर्फ स्किन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं और हम उन पे भरोसा करने लगते हैं। And we keep on trying with various products, various remedies. Then we have these over the counter topical applications. बहुत easy है हमारे सोसाइटी में किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाना कि भैया एक्ने हुआ है, कोई ट्यूब दे दो, और हम लगातार उसे लगाते रहते हैं। इनिशियली तो कई बार ये चीजें वर्क भी करती है, तो हमको लगता है कोई मिरेकल क्रीम हमारे हाथ लग गई है, बट लेटर ऑन वी कम टू नो एंड वी अंडरस्टैंड कि
it's not working. And that's when we go and land up in front of a doctor. So my question to you is, do these home remedies, these DIYs, these over-the-counter topical application specifically, do they really work or ये harmful हो सकते हैं हमारे skin और acne के लिए? Actually, they don't work at the root level, firstly. एंड आप केवल टॉपिकल लगा रहे हैं एक्ने होना उससे बंद नहीं हो सकता है बिकॉज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर सिस्टम दैट्स व्हाई यू गेटिंग एक्ने लीजन सेकेंडली ये जो आप टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है एंड दे आर मोर नोन टू कॉज एलर्जिक रिएक्शंस या रेडनेस एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रेडनेस आपके फेस पे हो सकती है इन सम केसेस यू आर अप्लाइंग समथिंग ऑन योर फेस ओटीसी क्रीम्स की बात हम कर रहे हैं तो ये क्रीम्स जो होती है इनमें यूजुअली एक कंपोनेंट स्टेरॉइड का होता है व्हाई बिकॉज जो भी ये कस्टमर्स हैं दे वांट क्विक रिलीफ तो क्विक रिलीफ हमेशा स्टेरॉइड से ही आएगा बट व्हाट हैपेंस लेटर ऑन तो इनिशियली 7 days 10 days के लिए लगाया आपको लगेगा एकदम से मेरा फेस कितना ज्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग हो गया एंड सारे एक्ने गायब हो गए but when you use it for a longer period of time and after that when you stop it suddenly eruption आएगा बहुत सारे एक्ने हो जाएंगे फेस पे रेडनेस हो जाएगी आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी जो प्रोडक्ट्स आपको पहले यूज आपको सूट भी करते थे आप यूज करते थे वो अब आप यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज स्किन रिएक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर स्टॉपिंग इट एंड देन आपकी स्किन को उस ओटीसी क्रीम की अब आदत बन चुकी है सो बट आपको वो स्टॉप भी करना जरूरी है यू कैन नॉट अप्लाई इट फॉर लाइफ लॉन्ग तो कोई भी क्रीम आप बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी ना लगाएं जो क्लेम करते हैं कि इमीडिएटली आपके एक्ने सही कर देगा Fair enough. तो home remedies या DIYs या over the counter topical application ये तो रूट लेवल पे वर्क नहीं करता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले डायग्नोसिस हो कि एक्ने हुआ क्यों है पता तो चले कि आपका एक्ने और किसी दूसरे का एक्ने तो ऑफकोर्स अलग अलग रीजन से होगा तो आपको क्यों हुआ है तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना होगा सही सलाह सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है डॉक्टर कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया स्पेसिफिक जिसमें एक्ने बार बार आते हैं जैसे कई लोगों को फोरहेड पे बहुत एक्ने आते हैं कई को जो बटरफ्लाई एरिया जिसे हम कहते हैं चीक है नोज है यहाँ पर एक्ने आते हैं कुछ है जिन्हें जॉ लाइन में बहुत एक्ने आते हैं नेक पे एक्ने आते हैं डू दे सिंबलाइज समथिंग देखिए साइट स्पेसिफिक हम कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कई बार तो ये सच में ऐसा होता है व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपके स्कैल्प में हेयर लाइन में बहुत ज्यादा एक्ने आ रहा है तो यूजुअली देखा गया है कि जो भी लोग बहुत ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं केमिकल यूज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा हेयर ऑयलिंग करते हैं तो उन्हें फोरहेड पे एक्ने आना हेयर लाइन पे एक्ने आना काफी ज्यादा कॉमन होता है सेकेंडली मेनली जो अगर टीज पर भी अगर आपको एक्ने आ रहा है योर फोरहेड योर नोज एंड लिटिल बिट पार्ट ऑफ द चीक्स एज वेल तो दिस इंडिकेट्स एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन जो कि यूजुअली हमें टीनेज ग्रुप में मिलता है यूजुअली टीनेज एक्ने में सेंटर ऑफ द फेस ही इन्वॉल्व होता है एंड इफ यू more acne on your jawline that clearly indicates some hormonal disorder chin या mandibular area में अगर आपको acne है तो ये hormonal disorder को बताते हैं and nowadays what happens is also due to friction use of mobile phones we're getting acne in this region of the face whatever comes in contact with mobile phone or some infected pillow covers while you're sleeping so due to infection also due to friction we call this as acne mechanica this is also a condition तो इसका बेसिकली है कि जो भी एरिया कांटेक्ट में आएगा उससे फिर वहां पे उस एरिया में एक्ने डेवलप हो जाता है तो स्पेसिफिक भी कॉजेस हैं बिल्कुल और अगेन भले ही वो एरिया स्पेसिफिक है लेकिन उसके लिए भी आपको सही सलाह सही ट्रीटमेंट की जरूरत मिली है और जिसके लिए आपको जाना होगा क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर हम हमेशा कहते हैं कि एक गुड स्किन केयर रूटीन इज इम्पोर्टेंट रेगुलर बेसिस पे जब एक कंसिस्टेंटली हम स्किन केयर रूटीन अपनाते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी होती है स्किन बैरियर हेल्दी होता है एक्ने के चांसेस कम होते हैं या एक्ने रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है उनको भी एक बेहतर स्किन मिल पाती है तो ऐसे में ये जानना स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए कि एक अच्छा स्किन केयर रूटीन क्या हो और वो भी जो बहुत बेसिक हो जो बहुत मिनिमलिस्टिक हो जिसे हम रेगुलरली यूज कर सके तो आपके लिए क्या होगा वो किस तरह का होना चाहिए
इसमें आपको चूज करना है बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक तो आपका क्लेंजर कैसा हो। तो क्लेंजर एक्ने प्रोन पेशेंट्स में सोप फ्री, लिपिड फ्री होना चाहिए, नॉन कॉमेटोजेनिक होना चाहिए एंड हाइपोअलर्जेनिक। बेसिकली एलर्जी ना करे, रैशेस ना करे, बहुत ज्यादा हार्श सोप्स आप यूज नहीं कर सकते इफ यू हैव एक्ने। यूजुअली दे हैव सेंसिटिव स्किन। तो आपका क्लेंसर बहुत ही माइल्ड होना चाहिए एंड इट शुड मेंटेन द पीएच ऑफ योर स्किन, दैट इज 5 to 7. Apart from this, after cleansing, you have to moisturize your skin well to maintain the hydration. So always use a lightweight gel-based moisturizer. Okay. And also it should have good emollient properties. Why? Because we need to maintain the skin barrier also. So emollients, you have to look for ingredients like propylene glycol, glycerin, and hyaluronic acid. They maintain the hydration of the skin. So a good moisturizer, which is lightweight, and it is gel. And after cleansing, moisturizing, last step would be sunscreen in the normal skincare of the patient. So sunscreens, they are today we have specific sunscreens available for acne patients, which are suitable for acne skin types. Sunscreens they are usually means they are non-greasy, non-acnegenic, and they are suitable for acne patients. So they should use specifically sunscreens that are for acne patients. तो स्किन केयर में यही ध्यान रखना है एक्ने पेशेंट्स को, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं इट शुड बी फॉर योर स्किन टाइप। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा कि एक अच्छा एक माइल्ड क्लेंजर बहुत जरूरी है डॉक्टर, लेकिन कई बार क्या होता है जिनको बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है स्किन पे, उनको लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है तो वो बार बार अपना चेहरा धोते हैं और उन्हें लगता है एनीथिंग विच फॉर्म्स अ लॉट ऑफ फोम लेदर, उससे उनका स्किन जो है ज्यादा क्लीन रहेगा। इज इट अ मिथ या ये सही है? It's actually a myth. Not more than 2 times a day you should wash your face. तो अगर सुबह शाम बस आप 2 बार वॉश करते हैं इतना enough। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ऑयल आ रहा है, मैं बार बार उसको वॉश करूंगा, क्लीन कर लूंगा, स्किन रिएक्ट्स टू इट इन द फॉर्म, स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, देन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो आप ट्राई स्टॉप द ऑयल सेक्रेशन, बट बार बार वॉश करने की वजह से इट ओनली इंक्रीजेस द प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंट वॉशिंग नहीं करनी है, हार्श कोई भी सोप वगैरह यूज नहीं करनी है फेस को क्लीन करने के लिए। ओनली 2 times यू हैव टू वॉश योर फेस। ओके। ऐसे मॉइस्चराइजर को लेकर भी स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको लगता है कि वी ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ ऑयल ऑन आवर स्किन, तो इस पे और ज्यादा मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत है, तो वो कई बार मॉइस्चराइजर का जो मॉइस्चराइजेशन का जो पूरा पार्ट है उसे ही स्किप कर देते हैं। उसे लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है, क्योंकि स्किन वॉश करने के बाद ड्राई हो रही है, देन आप मॉइस्चराइज नहीं कर रही है, तो उसके बाद प्रोडक्शन और increase हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया, लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यू कैन इजीली यूज, जो कि नॉन ग्रीसी है, तो आपको बहुत ज्यादा स्टिकी या ग्रीसी फीलिंग भी नहीं आएगी जो ऑयल प्रोडक्शन से आती है। सेकेंडली, इट विल स्टॉप ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल ऑन योर फेस। सो मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर एक्ने पेशेंट्स। डॉक्टर, अगेन कमिंग टू सनस्क्रीन पार्ट, लोगों को लगता है स्पेशली दोज हु हैव एक्ने इश्यूज और दोज हु हैव ऑयली स्किन, दे हैव सो मेनी कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेस, and probably that is the reason that still in our country 69-70% of the population is not using sunscreen on a regular basis. हम सनस्क्रीन तब यूज करते हैं जब हम धूप में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीच वेकेशन पे जा रहे हैं, अदरवाइज लोगों को लगता है घर पे है या बहुत ज्यादा धूप नहीं है, ऑफिस में एसी है, कार में एसी है, तो सनस्क्रीन की क्या जरूरत है। तो ऐसे में अपने स्किन के लिए तो खास तौर पे लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स रहते हैं दैट वी स्टार्ट स्वेटिंग or it makes our skin so dull or patchy, or white cast is something which they don't like. Then they also say that we don't want to layer up our acne with sunscreens. तो किस तरह का सनस्क्रीन चूज करना चाहिए, and why it is important to apply sunscreen even if there is acne? It is very important for acne patients. Why? Because acne lesions, they leave behind acne scars and post-inflammatory hypopigmentation, and which takes about
4 to 6 months to clear up. So if you're protecting your skin from sun damage, if you're protecting your skin from sun, then ये PIH का risk बहुत कम हो जाता है, and then spots clear होते चले जाते हैं अपने आप. So if you're having acne and you want to prevent any hypopigmentation later on, बहुत जरूरी है कि while on treatment भी आप अपना sunscreen daily apply करें in generous amount. बहुत कम amount में भी sunscreen daily apply नहीं करना है, क्योंकि it will reduce the SPF. Sunscreen SPF 50 labeled है, लेकिन patient उसे कम amount में use कर रहा है, पूरे फेस पे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है नहीं बहुत ग्रीसी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाएगा. ये नहीं करना है, बिकॉज इससे आपको सनस्क्रीन का फुल एसपीएफ आप यूज नहीं कर रहे हैं. इट इज प्रोटेक्टिंग. एंड ऑल्सो एक और चीज, जब हम इंडोर्स होते हैं तो लोग सोचते हैं नहीं घर में रह रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ मिथ. हैव टू अप्लाई डेली. व्हाई? बिकॉज आपको देखिए दिन में आपके घर में भी रोशनी है, sunlight is coming through the glass, coming through the window, ultraviolet rays भी आते हैं indoors, so it is impacting your skin indoors as well. इसलिए घर के अंदर भी sunscreen लगाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. तो irrespective of the fact where you are inside or outside, you need to apply sunscreen on a regular basis. Reapplication is equally important. The type of sunscreens that you are choosing is equally important. और ऐसे में डॉक्टर अगर बहुत ज्यादा confusion है किस तरह का क्लेंजर, किस तरह का मॉइस्चराइजर, किस तरह का सनस्क्रीन, तो क्या डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? किस तरह का सनस्क्रीन आपको यूज करना है, किस तरह का मॉइस्चराइजर यूज करना है, पेशेंट्स को डिसाइड नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो टाइप ऑफ स्किन भी कई लोग नहीं डिसाइड कर पाते, किसका ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या कैसा है. एंड ऑल्सो स्किन एक्ने ट्रीटमेंट से भी कई बार बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो फिर सेंसिटिव स्किन के लिए जो क्लेंजर्स हैं वो अलग है. तो स्किन की कंडीशन एट द पॉइंट क्या है उसको देख के ही डिसाइड किया जा सकता है कौन सा प्रोडक्ट उनको सूट करेगा. इसलिए पेशेंट्स को जरूरी है कि वो दिखाएं डर्मेटोलॉजिस्ट को, एंड देन उसके बाद ना ट्रीटमेंट लें. बिल्कुल. सेंसिटिव स्किन और एक्ने ये भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, और उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स खास तौर पे यूज करने चाहिए, किन तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर? जिनकी स्किन सेंसिटिव है, फर्स्टली तो बहुत जरूरी है कि आपके स्किन के जो भी सेंसिटिव स्किन के जो ट्रिगर्स हैं आप उन्हें देखिए. कई बार ऐसा होता है ऑलरेडी जिनकी सेंसिटिव स्किन है उन्हें हॉट स्पाइसी फूड से या ओवर सन एक्सपोजर से या फिर कोई कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उससे, कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं जो एलर्जी कर रहा है, सेंसिटिव कर रहा है स्किन को, पहले उसे आप नोट करें कि किस चीज से मेरी स्किन सेंसिटिव हो रही है. इन चीजों को अवॉइड करें, हॉट स्पाइसी फूड को अवॉइड करें. जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें आपको सूदिंग कामिंग एजेंट्स यूज करें. जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चराइजर्स हम यूज, तो उनमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जैसे कि वो हमारा ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस रिड्यूस करें, हाइड्रेशन हमारे स्किन में मेंटेन रखें. तो कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट इसमें काम करेगा, जैसे कि डाइसिलिकॉन. एंड इनिशियली मैंने जो बताया था कि एमोलियंट्स चाहिए प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज वो एक स्मूथ टेक्सचर मेंटेन करेगा, स्किन का बैरियर मेंटेन करेगा. लाइक ऑक्सीडेट होना चाहिए. प्रोपिलीन ग्लाइकोल इज अ गुड इंग्रेडिएंट. ऑल्सो क्योंकि मॉइस्चर को होल्ड, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, hyaluronic acid, and also alpha hydroxy acids like glycolic acid. These, what they do is they bring the moisture from the dermis and they keep the epidermis moist. So barrier maintain रहता है. Mainly problem sensitive skin के patients में है, barrier उनका लूज हो जाता है. So skin actually reacts to everything. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चराइजर आप अपना बहुत सही तरीके से चूज करें एंड सही तरीके से उसको अप्लाई करें अपने फेस को. बिल्कुल. तो सही हमारा जो स्किन बैरियर है वो मेंटेन रहे, उसके लिए सही प्रोडक्ट, सही तरीके से उसका इस्तेमाल और सही सलाह जो कि हमें मिलेगी एक क्वालिफाइड डर्मेट से, एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेट से. इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. डॉक्टर, जब कोई पेशेंट आपके पास आते हैं एक्ने इश्यूज को लेकर, तो जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन आर यू श्योर कि क्या है, क्या स्टेज है, क्या कॉज रहा होगा, or at times you need to get some tests done as well?
We need to get this done mainly in cases of hormonal acne. Because usually hormonal acne is resistant to the conventional treatment that we give to acne patients. And also, when we see patients getting acne on their chin, jawline, so that itself is an indication कि कुछ hormonal issue है इसमें. So we need to get blood tests done in these patients and also and see what is the cause of the hormonal fluctuation. And hormone fluctuation can be multiple cause हैं. So to reach at the root cause, we need to get these blood tests done and then follow up accordingly. फेयर इनफ. कई बार जब टीन एज में यंग एडोलेसेंस में एक्ने आता है तो कई बार पेरेंट्स के पास जब बच्चे जाते हैं बिकॉज दे आर सो डिप्रेस्ड आल्सो एट द सेम टाइम, दूसरे बहुत सारे प्रेशर उन पर है ही, पढ़ाई का, करियर का, ऊपर से ये अपीयरेंस का एक प्रेशर. तो ऐसे में व्हेन दे गो टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स नॉर्मली से कि ये तो होता ही है, सबके साथ होता है, व्हिच इज ट्रू, एंड इट विल गो अवे इवेंचुअली, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो it will go away eventually, acne go away eventually, but लेकिन उनके जो marks cast रह जाते हैं, they are so stubborn, they don't go away that easily. So why it is important to actually go and consult a doctor? Is it one of the main reasons? क्योंकि eventually acne तो definitely will go away. Yes, that is the main reason. Why? Because people think that acne will go away and it will leave behind. It will leave behind acne scars, which are even more difficult to treat than acne itself. तो कंडीशन को इतना बढ़ने ही मत दीजिए कि बहुत ज्यादा डीप आपको सिंस नोड्यूल्स बन रहे हैं, देन आफ्टर दैट व्हेन वी गिव ट्रीटमेंट, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट स्कार्स रह जाते हैं. सो बेसिक थिंग इज टू रिमेंबर कि एक्ने लीव बिहाइंड स्कार्स, सो दैट्स व्हाई अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट. जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है इन द लॉन्ग टर्म. क्योंकि एक तो रेकरेंस के लिए भी हमें फिर ये सोचना है कि अगर बहुत ड्यूरेशन तक एक्ने आपके फेस पे है, देन ग्रेजुअली उसका सिवियरिटी बढ़ता ही जाएगा, वो अपने आप ठीक नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि टाइमली आप ट्रीटमेंट लें टू प्रिवेंट एक्ने स्कारिंग. Okay. और acne scarring and marks की अगर हम बात कर ही रहे हैं डॉक्टर, what to do and what not to do? ओके, स्कार आप चाह रहे हैं, आपको एक्ने हुआ एंड देन मुझे कोई स्कार्स नहीं चाहिए फेस पे, तो फर्स्ट थिंग इज नेवर पिक ऑन योर एक्ने. आपको अपने एक्ने को टच नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, स्क्वीज नहीं करना है, कितना भी टेम्पटिंग लगे कि काम नहीं करना है. Also then of course you have to take treatment time, and acne scar का भी treatment available है, but when you are preventing something better than treating it. So and also जो मैंने बताया था hypopigmentation, acne scar एक चीज है, and hypopigmentation spots जो बढ़ जाते हैं acne के different चीज, तो उसको prevent करने के लिए क्या करें, तो आपको स्किन के प्रोडक्ट, तो उसमें आप इसे हाइपोपिगमेंटेड डीपिगमेंटिंग एजेंट्स जैसे कि नाइसिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं. देन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड, दीज आर गुड एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स. तो ये बहुत जल्दी आपका पिगमेंटेशन क्लियर करेंगे, तो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन ताकि आपका पिगमेंटेशन जल्दी क्लियर हो. तो स्पॉट्स के लिए डेफिनेटली बिल्कुल. अब हम ट्रीटमेंट पर बात करते हैं डॉक्टर. एक्ने को लेकर किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? एक्ने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस है. टॉपिकल क्रीम से लेके, देन यू हैव ओरल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, रेटिनॉइड्स, and also different light therapies we have available for acne. So based on the severity of acne, आपको लीजन्स कैसे हैं उस पर डिसाइड होगा कि क्या ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा. Okay. Procedures We have like if you have comedones, then we can extract those comedones, known as comedone extraction. And in cases of severe acne, when patients get nodules and cysts on their face and big lesions, as you might have seen in severe acne patients, in that case, we can give intralesional injections, which helps in resolving the lesions quickly and gives a lot of relief to the patient in a short period of time. Apart from that, we have various chemical peels for acne patients, salicylic acid based peels, glycolic acid based peels that we can give.
which they provide quick relief to the acne patients. Apart from this, nowadays we also have light therapy for acne. So light therapy and laser therapy is also available, and then we have procedures for acne scarring. राइट अच्छा प्रोसीजर्स की जब आपने बात की तो मुझे याद आया कि प्रोसीजर्स एक तो जो प्रॉपर जो क्वालिफाइड डर्मैट हैं वो अपने क्लिनिक्स में देते हैं कुछ ऐसे भी क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते लेकिन यहाँ पे इस तरह के प्रोसीजर्स जो है वो किए जाते हैं कई तो ब्यूटी पार्लर्स क्योंकि वहां से एक बहुत ही फ्रीक्वेंट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रहता है और महिलाओं में हम एक तरह से कहें तो एक्ने इश्यूज ज्यादा होते हैं और रेगुलरली पार्लर्स विजिट करते हैं और कोई ना कोई वहां पे जरूर कहता है अरे माइक्रो नीडलिंग कर देंगे लेजर कर देंगे फीलिंग कर देंगे तो एंड वी आर सो कंफ्यूज हमें लगता है अगेन वही जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत कुछ करके सारे एक्सपेरिमेंट्स जब हमारे बिगड़ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और यहाँ पे भी कई बार ये देखने को मिलता है तो ऐसे में डॉक्टर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्यों जो प्रोसीजर्स है वो भी एक क्वालिफाइड डर्मैट से लेना जरूरी है rather than going for these quacks or various other places why it is important It's वेरी इम्पोर्टेंट फर्स्टली कि जो भी प्रोडक्ट या मान लीजिए मशीन कुछ भी वो यूज कर रहे हैं कोई प्रोसीजर के लिए पहले तो सर्टिफाइड है कि नहीं उसका मैन्युफैक्चरर कौन है और वो एफडीए अप्रूव है कि नहीं अगर कोई लेजर थेरेपी ले रहा है या कुछ ले रहा है तो वो एफडीए अप्रूव है कि नहीं इट मीट्स द क्राइटेरिया और नॉट सेकेंडली अगर जैसे माइक्रो नीडलिंग आप बता रहे हैं माइक्रो नीडलिंग कोई अगर क्वैक कर रहा है या ब्यूटी पार्लर में कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको ये श्योर करना पड़ेगा देन किसी एक पर्सन पे यूज किया हुआ कोई डिवाइस आप पे यूज तो नहीं कर रहे हैं देन इट रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन तो बेसिकली फॉर हाइजीन पर्पसेस ऑल्सो एंड ऑल्सो टेक्निक्स जो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जिस ट्रेनिंग से गुजरता है एंड देन वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हाउ टू हैंडल देम मुझे नहीं लगता कुछ ब्यूटी पार्लर वाले या कोई भी ऐसे क्वैक्स अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे हैंडल कर पाएंगे फर्स्टली एंड देन you land up in a situation where you are need to go so it's better first कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो सही तरीका है कोई भी प्रोसीजर डर्मेटोलॉजी का जो भी आपको कराना है तो वो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और तभी कराएं ब्यूटी पार्लर्स इस चीज के लिए नहीं है ऑल्दो दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस नाउअडेज तो वो लोग भी सब करने लगे हैं बट ये एक सही मेथड नहीं है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे बिल्कुल तो सबसे पहले तो कि जो ट्रीटमेंट है वो सही से हो सही क्वालिफाइड डर्मैट के सुपरविजन में हो वो कर रहे हो और दूसरा एटलीस्ट उन्हें ये पता होता है कि इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो किस तरह से उसे ठीक करना है वो थेरेपी वो नॉलेज उनके पास होती है भी काफी कुछ ऐसा ही है जैसे अगर हमें मान लीजिए कोई दूसरी सर्जरी करानी है बी इट किडनी सर्जरी और लिवर और हार्ट तो हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएंगे या झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन हाँ स्किन को लेकर हम थोड़े ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं और कई बार यही वजह है कि हम जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर खुद ही कहते हैं कि अगर पहले आ जाते तो बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में बहुत कम पैसों में आपका ट्रीटमेंट हो जाता अब आपने जो है खुद अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है आपके पास भी आई एम श्योर डॉक्टर इस तरह के केस आते होंगे और कई बार आपको भी ये लगता होगा कि अगर ये पहले आते तो बहुत आसानी से इनका ट्रीटमेंट हो जाता लेकिन इतने सारे DIYs और सब करने के बाद जब आते हैं काफी कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है ट्रीट करना एक्ने के केस में भी बिल्कुल एंड देन ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा फिर ओरल मेडिकेशन एंड सब कुछ आपको देना पड़ता है देन some patients so much on their skin exploited it then it reacts to the treatment as well and initially वो पीरियड भी पेशेंट को बेयर करना पड़ता है because even medications they will take time if your skin has gone through so much तो फिर एक बहुत ही लंबा प्रोसेस जाता है ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करना ट्रीट करना प्रॉपर तरीके से आप देखते हैं पूरा ही फेस इन्वॉल्व है कई जो फेस नेक चेस्ट सीवियर एक्ने के पेशेंट्स आते हैं तो जो कि बहुत कुछ घर पे ऑलरेडी यूज कर लिया है या किसी के बताने से कुछ क्रीम अप्लाई कर ली है बट देन कंडीशन उनकी
भी होती चली गई है, तो इसलिए बेटर है कि अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट हो जाए तो ज्यादा बेटर। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल भी हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं, कुछ सवाल मैं ले रही हूँ। एक क्वेश्चन मास्कने से जुड़ा हुआ, खास तौर पे कोविड के टाइम पे जब लोगों ने बहुत मास्क पहना, अभी भी ऑन ऑफ मास्क पहनते हैं। कई ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल की वजह से मास्क काफी जरूरी हो गया है, एंड दे फेस दीज एक्ने इश्यूज, तो क्या करें? एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि एक्ने जो मास्क के कारण हो रहा है, तो जो भी साइट आपका कांटेक्ट में आएगा, तो हम्म, मास्क का जो भी आपका एरिया है वो रब करता है स्किन से, तो फ्रिक्शन जब भी होगा एंड बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में है, आपको स्वेटिंग हो रही है, देन ऑल्सो पीपल आर मेकअप डाउन, तो वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा एंड देन एक्ने होगा। तो एक तो आपको अपना मास्क डेली चेंज करना है, न्यू मास्क पहनना है फॉर हाइजीन पर्पसेस ऑल्सो, एंड क्लीन रखना है, एंड देन ऑल्सो आप मास्क पहन रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप मत करिए, क्योंकि कुछ एक टिश्यू जो आपके समझ लीजिए मास्क ऊपर लगा हुआ है फेस पे, देन मेकअप भी उस जगह पर है, और ज्यादा ऑब्लूशन होगा, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगा। तो बेसिकली ऑब्लूशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ही एक्ने डेवलप हो जाता है, तो मास्क यूज करते हैं। ओके। एक सवाल पूजा का है, कैन चेंजिंग योर सिटी और वाटर क्वालिटी अफेक्ट योर एक्ने? So pollution and hard water, these are two things they have a role to play. Pollution, why? Because skin oily रहता है, acne patients का greasy रहता है, तो you are coming in contact with dirt, dust and pollution, तो वो stick रहता है आपके face पे and you just block कर देता है pores पे। तो बहुत ज्यादा pollution और dust में अगर आप हैं, तो आप अगर ऐसी जगह से वापस आ रहे हैं, तो एक तो अपने फेस को क्लीन करिए, साफ रखिए, ये बहुत जरूरी है। देन हार्ड वाटर ऑल्सो, तो आपके स्किन का पीएच मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, वाटर क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन एक्ने। तो वाटर सॉफ्टनर आप यूज कर सकते हैं घर में, आरओ वाटर जो घर में नॉर्मल होता है वो यूज कर सकते हैं अपने फेस वॉश करने के लिए, तो ये सब चीजें भी जरूरी है साथ में। ओके। सोनिया है, उनका सवाल है, इज इट सेफ टू यूज एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ऑन एक्ने स्किन, एक्ने प्रोन स्किन? Yes, it's safe. Why? Because usually anti-aging products में retinol ही होता है, which we are in acne patients also retinoids हम देते हैं, तो एक तरीके से retinol जो anti-aging product है वो एक mild form ही है retinoids, तो इट इज सेफ। हाँ, लेकिन आप कौन सा फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं, कितना अमाउंट में यूज कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में रेटिनॉइड्स लगा रहे हैं, ऑलरेडी रेड स्किन है, तो जाहिर सी बात है वो आपको सूट नहीं करेगा प्रोडक्ट। Also what which area you have to apply, which area you have to leave, this is also very important। जो sensitive skin है around the eyes, around the nose, around the mouth, ये already acne treatment से बहुत ज्यादा dry sensitive हो जाता है। then आप अगर रेटिनॉल अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर आई क्रीम आप अप्लाई कर रहे हैं रेटिनॉल बेस्ड, तो वो और ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन क्या आपको सूट का वो देखें, कितना अप्लाई करना, कितना फ्रीक्वेंटली ऑन अ डेली बेसिस आपको अप्लाई नहीं करना है, तो ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट। ऐसे ही मेकअप को लेकर लोगों का बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि अगर एक्ने है तो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या नहीं, और अगर करना जरूरी है, मान लीजिए ऐसे किसी प्रोफेशन में है, या होस्टेस है, एंकर है, एक्टर है, जहाँ पे यूज करना ही है, तो किन बातों का ध्यान रखें? मेकअप प्रोडक्ट्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि मेनली मिनरल ऑयल बेस्ड होते हैं, या पेट्रोलिटम या ऑयल पैराफिन सब रहता है मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो ये बहुत ज्यादा प्रोन है ऑपरेशन कराने के लिए। तो एक तो आपको जब भी आप मेकअप अप्लाई करें, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप अप्लाई ना करें मेकअप, एंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेकअप अप्लाई करना, बार बार वॉश करना या लंबे समय तक मेकअप लगा रहने देना, ये सब फिर प्रोन है, क्या होगा नहीं। ऑल्सो जब आप अपना फेस क्लीन कर रहे हैं, तो उसे डबल, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग प्रमोट भी कर रहे हैं कि डबल क्लींजिंग करना चाहिए, 2 बार अपना फेस। मेकअप रिमूविंग के लिए क्या करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक्ने पेशेंट्स को क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी,
Okay. आजकल मेकअप क्लेंजिंग बाम्स बहुत ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, बट इट्स नॉट फॉर एक्ने पेशेंट्स. एक्ने पेशेंट्स को क्लेंजिंग लोशंस या क्लेंजिंग मिल्क आते हैं या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो काफी सेफ यूज करना. कोई भी टोनर्स या बाम या क्लेंजिंग, मैं अभी बताती क्लेंजिंग बाम या फिर क्लेंजिंग ऑयल्स उनको नहीं यूज. नहीं करेगा उनको, तो फिर ये सब अवॉइड करना. हम सब जानते हैं अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा डाइट बहुत जरूरी है, और एक्ने के लिए भी कहते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना ये बहुत जरूरी है. तो एनी डाइटरी प्रिकॉशन डॉक्टर फॉर एक्ने पेशेंट्स, क्या लें क्या नहीं लें? जैसे कि हुए हैं तो उससे ये है कि आपको डेयरी अवॉइड करके होते हैं, राइट. तो मिल्क जो है वो हमारी बॉडी में थोड़ी ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स which causes the proliferation of the sebaceous glands, also inflammation, acne और ज्यादा. First is dairy. You have to limit your dairy. Then non-vegetarians में red meat या they have also been prone to cause. Apart from that, if you're having processed foods हो गया, packaged food हो गया, ये सब आपको नहीं. कोल्ड लेना है, सैलेड ज्यादा लेना है, then sprouts लेना है, ये सब आपको beneficial रहेगा. Anything that is rich in omega-3 या antioxidants, it is known to improve acne. Also, foods that are rich in zinc, vitamin A, और high dietary fiber. तो ये जो भी foods होते हैं आपके acne को improve करते हैं, तो they are good for patients. Right. Okay. And Dr. Sharma, before we wind up the whole session, any take-home message for our viewers? क्या करें, क्या नहीं करें? Any do's and don'ts? एक तो आप अपना प्रॉपर स्किन केयर मेंटेन करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बेसिक अच्छा जो क्लेंजर आपको सूट करता है, वो एक मॉइस्चराइजिंग जेल जो आपको सूट करता है, एंड देन सनस्क्रीन. इफ यू कैन डू दिस जस्ट दिस मच, दिस इज सफिशिएंट, एंड रेस्ट वी कैन टेक ओवर द रेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो भी है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस to improve your overall health, ताकि आपको एक्ने का हमें रूट कॉज ही खत्म करना है. तो एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, न्यूट्रिशनल डाइट लें, थोड़ा सा एक्टिव रहें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, 2 to 3 liters of water daily. So all this is important. बिल्कुल. तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना, कैसे, कब, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. फिजिकली एक्टिव रहना, रेस्ट लेना, ब्यूटी स्लीप लेना, सब बहुत जरूरी है. और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड एक्ने है, तो प्लीज डोंट एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन. गो टू द राइट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड, board certified dermatologist. Thank you so very much, Dr. Shivani Sharma. It was wonderful talking to you. Thank you for taking out your valuable time and making this session so informative. Thank you. Thank you, doctor. And viewers, thank you for your active participation. तो अपना ध्यान रखिए और हमेशा दमकते रहिए, चमकते रहिए. Stay spotless, stay happy, stay healthy, and take good care of yourself. Have a great evening ahead. Goodbye.